Hi Namita, hi Gajraj sir, hi Gulshan, hi Hello. hi Ratna ma'am, how are you? हेलो. कैसे हैं आप सब? हम सब नॉट बिल्कुल मजे में नर्वस. हैं. आप लोगों की तरह नर्वस नहीं हम लोग. Yeah, सुरक्षित है. we need to learn this. We need to learn this. We are also like No, Naveen no, is no, no. yeah. What you need to learn is not to tell anyone that you're nervous. Whatever Yes. you're going through is your problem, not mine. No. That's the actor's trick. Whoa. This is the ma'am. और I'm also learning this right now. Yeah. जिसके घर में इतना खूबसूरत नीले रंग का आसमानी रंग का खिड़की या दरवाजा है, उसको तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना वो चाहिए. फेक है सर, सही में. फेक बैकग्राउंड लगाया हुआ है. इसीलिए तो इतना खूबसूरत है, वहां पे नर्वस होने की जरूरत ही नहीं. तो मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि जो चीज़ें आप फील कर रहे हो भाई आपके अंदर है, लाइक यू डोंट नीड टू रिवील इट टू एवरीवन. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन हियर. ये बोला जाता है कि यार रोना है तो कुछ आपको कोई टफ सीन करना है तो अपनी मेमोरीज याद करो एंड लाइक यू कैन लाइक फील इट. नवीन इज ऑल्सो हियर सो आई विल क्विकली ऐड हिम. सो माय क्वेश्चन इज अबाउट दैट. व्हेन वाज द टाइम व्हेन यू स्टॉप्ड यूजिंग योर मेमोरीज टू क्राई? When was that time? And like I want Gajraj sir and Ratna ma'am to start it. ये आपने क्या बिल्कुल starting से ही it's like that कि okay I can cry like that, or do you still have to use your memories to feel some things? Namit like Oh, hello hi, सूर्या. Naveen. हेलो. Hi. क्या भाई So साहब? नवीन आप लेट हो गए, डिस्कशन चालू हो गया है. नहीं, नवीन लेट नहीं हुआ. नवीन का सीरीज हिट हो गया है. हाँ, नखरे हर एपिसोड का 1 करोड़ व्यूज हुआ है अभी. नखरे. But I'll quickly take the question again, Ratna ma'am and Gajraj sir. When was the last time या आपने कब से memories को use करना बंद कर दिया या आप अभी भी करते हैं to feel emotions like crying? Ma'am, Ratna ma'am? You want me to start? Yeah. Yes, ma'am. You won't be able to stop me now. No, please. My favorite, absolutely भी my दिखा दीजिए. favorite bugbear. So I can go on for the next 2 hours if you Please, want. ma'am, please. We are all yours. Yeah. 1 घंटे का प्रोग्राम है मैम. देखो, एक तो अगर आप औरत हैं तो आपको 1 पॉइंट प्रोग्राम दिया गया है. हंसना है या रोना है. हंसना है तो बेवकूफों की तरह हंसना है, रोना है तो भी बेवकूफों की तरह रोना है. तो मैं तो तैयार थी जब मैं शुरू किया था काम कि खूब रोऊंगी मैं, खूब हर चीज में रोऊंगी मैं. और मुझे रोने में बड़ा मजा भी आता था और बड़ी आसानी से भी हो जाता था. बड़ी मुश्किल बात नहीं है रोना एक्चुअली. कई लोग कहते हैं कि मुश्किल है रोना, बट इट कैन बी वेरी इजी ऑल्सो फॉर सम पीपल. एटलीस्ट इट वॉज इजी फॉर मी. सो आई हैड टू फाइट दैट ब्लडी addiction to displaying my emotions all the time. So, first of all, I just am deeply thankful that the early work that I got as an actor was comedy. That was the first paying job I ever got. Idhar udhar. Udhar, yes. Right. I've seen And it. I have said this hundreds of times. I will say it another 100 times. Comedy saved me from becoming a nuisance as an individual, a human being, as well as an actor. I am deeply grateful to comedy for it. It cured me of this desire to cry at the drop of a hat in the name of acting. To say that this is what a woman does when she acts. So, I'm glad to get rid of it. आपने जो सवाल पूछा is what is often talked about in method acting and all sorts of things like that as emotional memory. It's a much misunderstood and a much maligned term. इसको समझते बहुत कम हैं और इसका गलत उपयोग बहुत किया जाता है. इमोशनल मेमोरी का उदाहरण इस तरह से दिया जाता है कि अगर आपको एक सीन करना है जहां आपकी माँ मरी हुई है तो आप कुछ ऐसा सोचिए जिसने आपने जब मौत कोई देखी हो, चाहे अपना पेट ही मर गया हो, है ना. आप अपना पेट के मौत का विचार कीजिए और धड़ धड़ आंसू निकल आएंगे आपके. What a load of rubbish. How can I respond to my mother's death in the same way as I respond to a pet's death? What kind of ridiculous instruction was that? And it was given to me in acting school. The most dangerous places in this country, acting schools. They teach actors all kinds of stuff that you have to throw out of the window as soon as you get out of acting school and get your first job. So this business needs a lot more understanding and explanation. और ये बहुत गलती से इस्तेमाल किया गया आइडिया है. अगर आपको रोना है सीन में तो आप सीन पढ़िए,
आप उसके बारे में विचार Nice, कीजिए, आपकी nice. जो रिलेशनशिप है उस सीन में उस पे फोकस कीजिए, उसका विचार कीजिए, जो बंदा जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ कनेक्शन जो है उस पे ट्रस्ट कीजिए, और फिर अगर जरूरत है रोना तो रोइए। और आप देखिए जिंदगी में कितने लोग फूट फूट के रोते हैं, आप सब अपने आप सोच लो, रियल लाइफ में आप लोग कितना रोते हैं, कितनी आसानी से रोते हैं? नहीं रोते हम लोग, जब रोना आता है तो रोकते हैं हम, सिर्फ एक्टिंग करते वक्त हम करके सारा अपना इमोशनल बैगेज दुनिया को दिखाने में लग जाते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्टिंग एट ऑल। Sorry, I've started to talk very seriously. Man, this was something. Gajraj sir, do you like want to also take this question up? आपके क्या विचार है? मेरे ख्याल से रत्ना जी ने जैसा बोला ना कि वो माँ का मरना और डॉगी का मरना, उसका आप रेफरेंसिंग सेम नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआत के दिनों में मुझे पता नहीं चलता था कि रोना है, या मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं मानता था अपने आप को, बहुत शुक्र है। हाँ नहीं, और ढुलुल पुलुल चलता था, और उसके बहुत सालों बाद कह सकते हैं कि 5-7 साल 8 साल बाद जाके कहीं पे रियलाइज हुआ। और उसके अंदर भी ये कह सकते हैं कि जब मैं स्टेज कर रहा था तो स्टेज में आपके पास ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाना सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होती है। अपना जो डायलॉग है वो इम्पोर्टेंट है कि आप ऑडियंस के पास वो बात पहुंचे। तो मुझे लगता है कि उसमें मैं हैंडीकैप थोड़ा महसूस करता था कि बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाया था उस समय। लेकिन जब सिनेमा के लिए, कैमरा के लिए एक्टिंग हुआ, तो फिर उसके बाद आसपास देख के लोगों को या सिनेमा देख के उसमें रियलाइज हुआ कि हाँ, ये क्योंकि आपको कैप्चर हो रहा है सारा आपका इमोशन यहाँ पर अलग अलग लेंसिंग के साथ। तो मुझे जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मैं अगर कहूँ कि मैं ठीक कर पाया, तो वो उस सिचुएशन में ठीक कर पाया जहां पर वैसा माहौल क्रिएट किया गया, डायरेक्टर्स, को एक्टर्स, और सबसे बड़ा जो ब्लूप्रिंट है, जो स्क्रिप्ट है, जो मैप है, वो करेक्ट है अगर, तो उसके बाद इमोशंस अपने आप आ जाते हैं। अगर वो स्क्रिप्ट में नहीं है सबसे पहली चीज, तो प्रॉब्लम है। अगर आपका को एक्टर्स उस सीन से ठीक पहले कुछ बहुत ही मजाकिया बात कर रहा है, तो आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। तो वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे बधाइयों में जो अस्पताल वाले सीन, या सुरेखा जी की जो साथ जो सीन हो रहे थे, तो जैसे मैं इंटरवल से पहले एक सीन था जहां पे सुरेखा जी दोनों बहुओं को डांटती हैं, तो वो उसमें हम लोग प्रॉप की तरह थे, हमें आना था, बैठना था, रिएक्ट, कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ये कहां पर लीड करेगा। लेकिन जब सुरेखा जी और वो नीना जी के साथ जो हो रहा था वहां पर, तो अपने आप हम लोगों के मेरा गला भराया। वो सोचा नहीं था, मैंने वो प्लान नहीं किया था, मैंने रिहर्सल में प्लान नहीं किया था, लेकिन वो जब अमित ने कट नहीं बोला, तो वो जो पूरी एनर्जी जो आ रही थी वहां से, और जो जी जो इस उम्र में उस तरह से गला रूंधते हुए लंबी लाइन पूरी उन्होंने बोल दी, 5-6 टेक्स अलग अलग एंगल से, तो वो हो पाया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पता नहीं मैं सेंस बन रहा है मेरी बातों का कि नहीं। नहीं सर, बिल्कुल, लाइक ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग टेक है। आई ऑल्सो वांट लाइक गुलशन, नवीन एंड नमिता टू जंप इन नाउ। ये हम लोग सीनियरिटी के हिसाब से जा रहे हैं क्या? नहीं, मतलब मेरे तीनों का आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक। नहीं, मैं बहुत शॉर्टली, मैं इतना मतलब गुजरात जी और रत्ना जी के बीच में आई थिंक 100 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। करेक्ट। मजाक कर रहा हूँ। सो आई जस्ट लाइक टू से कि बहुत ज्यादा मैंने रोने धोने का रोल्स नहीं किया, लेकिन नाटकों में करना पड़ा था। और शुरुआत में खैर मैं तो ड्रामा स्कूल या एक्टिंग स्कूल जा नहीं पाया, शायद ये अच्छा है शायद ये बुरा है, बट सीखना पड़ा। बट मैंने ये रियलाइज किया कि कोई भी सीन हो, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन हो, ये जो चीज आप कह रहे हैं ना, इसको आई थिंक सेंस मेमोरी रिकॉल है, सेंस मेमोरी ऐसा कुछ कहते हैं। मैंने रियलाइज किया कि जितना आप कंपोज्ड है, आप अपना कंपोजर मेंटेन करेंगे और जितना इमोशनली प्रिपेयर करेंगे, आपको उतनी आसानी होगी टू बी ट्रूथफुल। कि जो जिन्होंने भी लिखा है, राइटर्स ने लिखा है, वो जो सीन है वो आसान हो जाता है। जैसे गजराज जी बोल रहे थे कि आपके ऐसा कलाकार आपके कंपोजर को अगर भंग ना करें, स्पेशली इफ इट्स अ वेरी सीरियस सीन, सो यू हैव टू आल्सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड गार्ड योरसेल्फ फ्रॉम
not losing your composure and sense of concentration. कुछ ऐसे हल्के फुल्के सीन्स में आपको बहुत आसानी हो जाती है, and also your experience will also get you back in composure. But ऐसे बहुत emotionally demanding scenes में I think it's, I mean, I do definitely isolate myself. I won't talk. I'll just remain with the scene. I'll keep thinking about the character, about the scene, and all of the things, and maintain my composure as much as possible. It's as simple as that. Your heart rate should not elevate. Your heart rate should be normal. So this helps me. Okay. So around 350 people are watching us right now. A lot of people are donating also. मैं उन सब के नाम अभी shortly लूँगा. इस stream से जितना भी donation आएगा, there is this foundation जिसका नाम है अन्न क्षेत्र फाउंडेशन. It will go to that. Like ये लोगों के घर तक खाना पहुँचाती है. जयपुर based एक foundation है. या गुजरात सर, please. तो इसके अंदर मैं खाली जानना चाह रहा हूँ जो ऑडियंस है उनके उसके लिए, नॉलेज के लिए, कि इसमें कोई लिमिट है या No, कुछ there is no limit. There is no limit. कितना, मतलब 50 रुपए या 100 रुपए भी दे सकते 20 हैं? रुपए से लेके सर अभी तक 10,000 रुपए तक की दोनों की हमारे पास लाइक डोनेशन. 10,000 की भी लिमिट नहीं है, 10,000 से ऊपर ऊपर देना भी जा चाहे सकते हैं. या हाँ, मतलब एक एपिसोड का 1-1 करोड़ है, तो मतलब तो एक अमिता और नवीन करोड़ों में भी कर सकते. We will, yeah. That is a good segue to ask Namita that question. Which? The same, like we want all your opinions on that. I think what yeah. everybody has said, it's my answer is an amalgamation of everything, because I'll just give a quick reference, because even for aspirants, जब breakup scene shoot हो रहा था, me and Naveen didn't speak to each other for 3 hours, and the set was very conducive for that scene because nobody was talking to us, and I had to listen and react to the dialogues. मुझे कुछ बोलना नहीं था, मुझे सिर्फ सुन के react करना था, and I could not have preempted my reactions कि मैं force करके उस टाइम पे रोने लग जाऊंगी या उस टाइम ये expression दूंगी. तो obviously to be very emotionally vulnerable and listen to what was being said to me. And yes, it helps कि script कैसी है, आपका director, our director made sure that we didn't speak, everybody was, cooperating, and we were in that zone. तो मेरे लिए it really worked and it really helped me. I didn't have to force anything. Namita, but let's, अगर आप honestly आप बिल्कुल use नहीं करते memories, like because जैसे सबका अलग अलग हो सकता है, maybe at some for the breakup scene I did think of in my general, breakup a little bit. Yeah, you did? Little bit. Yeah, Okay. a little bit, but not exactly that. Not exactly, because what was happening was very different. I just got a little bit of sense of what had happened to me earlier, but not exactly. I don't want to go down that hellhole ki matlab kisi ki death imagine kar and all that. Then I don't think I'd be able to come out of a scene after it's over. So no, it doesn't work with me also. Okay. Naveen, what about you? हाँ, मेरा भी वही है. वैसे मैंने बहुत ज्यादा अगेन रोने वाले सीन नहीं करे हैं, Okay. लेकिन मेरे को रत्ना मैम ने जो कहा वो एकदम करेक्ट बात लगती है. और मैं Correct. मुझे भी. फिल्म मतलब मैं भी ज्यादा ऑडियंस की तरह चीजें देखता हूँ. मुझे बहुत खटकता है जब लोग बहुत रोना दिखाते रहते हैं कि देखो हमें रोना आता है. और मुझे ऐसा लगता है रियल लाइफ में जब हमें रोना आता है, अगर हम लोगों के साथ हैं तो हम हमेशा छुपाएंगे, उसे आने नहीं देंगे. जनरली हम सभी इमोशंस अपने छुपाते हैं वैसे. तो हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है. कई बार ऐसे ब्रीफ मिलते हैं कि थिंक अबाउट दैट एंड थिंक अबाउट दैट. वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट ही करता है मुझे. तो एक बार तो मैं एक सीन में था और कैमरे के पीछे से डायरेक्टर बस बोली जा रहा था कि नवीन सोच, तेरे साथ उस आदमी ने ऐसा किया था. I know this. हाँ, ये बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है. मैंने कहा कि यार इसको प्लीज आप मत ब्रीफ दो, देते रहो. तो हाँ, बाकी वो तो है ही यार, पूरा एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है. लेकिन मुझे भी कोई मेरे पास अभी फॉर्मूलाज नहीं है. मतलब अगर मैं शायद बहुत मतलब आई कैन नॉट इवन से कि आई विल बी एबल टू डू इट और आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. अगर वो हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कुछ वो करेक्ट इमोशन दिख पाया. बट मुझे बहुत रोना तो मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन वो मुझे somehow इतना करेक्ट लगता भी नहीं है. मुझे लगता है अगर आपको रोना आएगा तो आप हमेशा रोना कम से कम करोगे. और उसी मोमेंट में वो जैसे वो बस का मोमेंट है, वानी, यू वर टॉकिंग अबाउट इट, राइट? तो आई वाज ट्राइंग टू डू दैट ओनली. मतलब मेरे को आ रहा है लेकिन आई एम नॉट लेटिंग इट कम आउट. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू. और हाँ, अगेन आई होप. और यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम सब लोग क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, तो कभी-कभी ऑब्जर्वेशन से क्राफ्ट भी पिक कर सकते हैं. लेकिन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक्टर ने उस सीन में ग्लिसरीन लगा के रोया या सच में रोया या मेमोरी रिकॉल किया, इट डज नॉट रियली मैटर, बिकॉज उनको क्राफ्ट से कोई मतलब नहीं है. सो देयर आर पीपल हु विल आल्सो उठ के आते हैं, ग्लिसरीन लगा के सीन करते हैं, एंड यू आर लाइक माय
गॉड ये तो भगवान नीचे आपके करके गए Yes. scene. नहीं, but as actors, do Hey, you? sorry, I have to say yeah. that I have never seen a scene done like that. Somebody who switches on and off. मुझे वो sure. believable. No, I'm not. काफी हमारी shootings में ये देखा है. हमारी नजर थोड़ी ज्यादा, हम लोगों की नजर, बिकॉज हमको क्राफ्ट की समझ है, तो हम लोग एक अलग नजर से देखते हैं. मैंने ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, जिनको क्राफ्ट से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए. But Gulshan, I have उनकी to. नजर से ऑडियंस भी रियल परफॉर्मेंस, ट्रूथफुल परफॉर्मेंस को इमीडिएटली पहचानती है. और आज की ऑडियंस तो खास करके, डोंट फॉरगेट 3000 साल से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इमोशंस एक्सप्रेस करने के फॉर्मूला बने हुए हैं. 3000 साल पुराना है नाट्य शास्त्र. उसमें आपको नवरस का जो कॉन्सेप्ट है, और वो हमारे हर आर्ट फॉर्म में बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है. तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन पर्टिकुलर वे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कोड. द अभिनय of Natya Shastra is a codified language that actors use. So we are used to that. We are used to seeing the same thing over and over again. We are used to hearing the same story over and over again. It is only now, in the last 25, 40, 50 years, that I am noticing that there are different stories, there's different experiments in how to tell a story, how to act. And that's what I'm finding very exciting today. When I watch younger actors, when I watch all of you, and I've watched, sorry, not you, Namita, I'm sorry, I haven't seen yours work, but all the other young actors I'm seeing today, I'm so delighted by just this fact. कि ये complete lack of connection जो मुझे पुराने actors के साथ होता था, कि यार ये अभी रोया, उफ ये अभी गाना गाएंगे, हाय तौबा अभी ना, गुस्सा करेंगे, और एक ही तरह से बार बार करेंगे. ये जो मुझे कोफ्त होती थी, आज मुझे नहीं. आई एम ऑलवेज सरप्राइज्ड. क्या रे, इस बंदे ने ऐसे किया, वाह गजराज, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी. क्या रे तुम, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, नवीन, एटसेट्रा, I mean, it's so fantastic to see actors who are surprising you all the time, yaar. Who wants to hear the same story again? मुझे नहीं सुननी. But Ratna ma'am, एक question, like would you look down upon someone जिसने maybe glycerin use करके इतनी अच्छी acting कर दी? Okay. Why? It is, I mean, if you're using dubbing, which is a technique, which adds or subtracts from your performance, then why not glycerin? Same difference. Right. And don't forget, however good you are, if you have to give 20 takes, you're going to bloody need glycerin. वो सामने वाला एक्टर लाइनें फ्लब कर रहा है, आपको बार बार रोए जाना है. One for sound. One for sound. Right. Glycerin के बिना काम नहीं चलेगा बॉस. Like what about the others? आपका क्या opinion है about this like thing कि would you look down upon someone जिसको आपको टेक्निक के बारे में पता चला, आपको लगा कितना नेचुरल है, बट someone किसी दिन किसी ने पार्टी में बताया, को पता है उसने एक्चुअली ऐसा किया था, क्या आपकी उस एक्टिंग के लिए इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी गजराज सर की लाइक बाद में पता चला? मेक बिलीव वर्ल्ड है ना, हम लोग वो दुनिया क्रिएट कर रहे हैं. हम लोग 250 लोगों के बीच में 150 लोगों के सेट पे हम बाप बेटा, पति पत्नी, भाई बहन, बॉस, और जब वो उत्पल दास अमोल पालेकर साहब के सीन होते होंगे तो 150 लोग खड़े होते होंगे ना आसपास, उनके बीच होता होगा ना राम प्रसाद, तो वो मेक बिलीव ही होता होगा ना. मूंछ निकलती होगी, उस मूंछ को दोबारा चिपकाते होंगे. जैसे रत्ना जी ने बहुत अच्छा बोला कि ये टेक्निक है जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती है या उसको कहीं कमतर करती है. कई लोग होते हैं जो डबिंग अच्छी नहीं करते हैं, उनके लिए दिक्कत होती थी पहले जमाने में. अब तो खैर सिंग साउंड हो जाता तो बच जाते हैं. मुझसे डबिंग नहीं होती है, मैं बहुत खराब डबिंग करता हूँ, घंटों घंटों लगते हैं मुझे. तो मुझे लगता है कि ये सिंग साउंड बहुत अच्छा है, या बिना ग्लिसरीन के मैं निकाल लेता हूँ, कुछ टेक निकाल लेता हूँ, 6-7 टेक, 8 टेक. लेकिन उसके बाद जब वो होता है कि डायरेक्टर बोलता है कि एक इस एंगल से भी लेते हैं, तो फिर उसमें मर जाता हूँ. फिर उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है. मैं मेकअप तो मुझे ग्लिसरीन दे दे और मैं उसी इमोशन को दोबारा लाने की कोशिश करता हूँ. ये मैं एक अपनी दुनिया बना रहा हूँ, मायावी दुनिया, जो दर्शकों तक पहुंचेगी. उनसे क्या लेना देना कि और कई बार तो ये मैंने ऐसे भी एक बार परफॉर्मेंस किया जहां पर मुझे लूज मोशन हो रहे थे और मैं इमोशनल सीन कर रहा हूँ और मुझे जाना है वैनिटी में बार बार, लेकिन अब वो कह सकते हैं कि वो मेरे एक्सप्रेशन जो है कि
तो पर- कुछ भी पर गजराज सर, कुछ लोग अपनी एज एन एक्टर, कुछ आपने ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया, क्वेश्चन टू एवरीवन, जो अपनी ईगो पे ले जाते हैं, नहीं मैं तो ग्लिसरीन यूज करूंगा ही नहीं। कुछ ऐसे होते हैं, हाँ। ऐसे होते हैं, लेकिन अगेन ये हर एक का अपना तरीका है उस सच्चाई तक पहुंचने का, उस एक परफॉर्मेंस तक पहुंचने का अपना एक तरीका है, उसको मैं रिडिक्यूल नहीं करूंगा। कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं। बट सर जैसे मैं दिन खत्म हो गया। मैं एक शूट में हाँ। वैनिटी वैन में 2 कमरे या 3 कमरे वाला वैनिटी वैन था, 3 डोर वाला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं म्यूजिक लगा के बैठूं, छोटा मोटा वो अपना जो स्पीकर लेके, और उसमें वो नुसरत साहब को या दलेर मेहंदी को या किसी को सुनूं उस मूड के हिसाब से। अब मैं सुन रहा था, और एक दिन शूट हुआ, दूसरे दिन शूट हुआ, दूसरे दिन एक तरफ जो एक्टर थे मुझसे सीनियर थे थोड़े से, और बड़ करके मेरे दरवाजा पे ठक ठक हुई, तो मैं डर गया, मैंने बंद किया और दरवाजा खोला तो लिटरली फड़फड़ा रहे थे, कांप रहे थे वो। गजराज, नॉट फेयर गजराज, कौन गो दिस, मैंने कहा क्या कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता कि I'm preparing for my role and you're ruining everything। अरे बाप रे। मैं मुझे वाकई में शर्मिंदगी हुई, और मैंने प्रोडक्शन वाले को बोलकर मुझे इस वैनिटी से निकालो, अरे मैं बाप म्यूजिक रे। बंद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं उनके साथ काम किया, मैंने शूट पूरा किया, लेकिन मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया, ये उनका तरीका था। मैंने अपना म्यूजिक भी बंद नहीं किया, मैं दूसरे कमरे में नहीं, आई लाइक हाउ आपने अपना म्यूजिक बंद नहीं किया, आपने अपनी प्रोसेस कंटिन्यू की। मैं क्यों गिल्ट में आऊं, मेरा ये प्रोसेस है। राइट। मेरे को जैसे हिंडोल ने भेजा कि लाइक विद्या बालन हर कैरेक्टर के लिए एक अलग परफ्यूम यूज करती हैं, सो ऐसे आप लोग लाइक टू रीच दैट लाइक कैरेक्टर्स थिंग, आपकी ऐसे क्या ऐसी इडियोसिंक्रेसीज हैं कि जो भाई आप ही यूज करते हो कि यार मेरी एक ट्रिक है। जैसे गजराज सर ने म्यूजिक वाली चीज बहुत इंटरेस्टिंग बोली, सो नमिता, नवीन, गुलशन, आप लोगों के लिए ऐसी क्या चीज़ है कि यार ये मेरे को ना ये चीज़ करना बड़ा पसंद है एंड आई डू इट एंड आई एम वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। या नीचे से स्टार्ट, नहीं नीचे से, नमिता नीचे से, अच्छा आपके नीचे से शुरू करते हैं। मैं जो भी हूं मैं बीच में हूं। नवीन शुड स्टार्ट। मेरा भी यार, मेरा अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना है, मुझे कोई तरीका क्रैक नहीं हुआ है मेरा, बट हाँ मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर कोई चीज चाहिए किसी सीन के लिए, अगर वो किसी भी तरीके से आ सकती है, मैंने तो बहुत उटपटांग तरीके की कोशिश करी है। एक बार वही नवीन सेट पे बहुत हंसता था जोर से हर सीन के पहले, हमारे मोन्टाजेस से पहले तो एटलीस्ट हा करके हंसता ही रहता। मैं हंसने में भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ और मुझे रोने में भी बहुत स्ट्रगल होता है, तो मैं कैंप शुरू होने से पहले नकली एक्टिंग करता रहता हूँ, मतलब पता नहीं कैमरा कैसे होता है, ताकि मैं खुल जाऊं। और रोने के सीन में एक बार ऐसा भी हुआ है कि 4-5 टेक हो गए और मुझे लगता है पहले 2-3 टेक में मैंने कमाल का कर दिया, लेकिन अब वो कुछ शूट नहीं हुआ या पता नहीं मिला नहीं, अब मैं फंस गया, अभी मेरे से वो दोबारा हो ही नहीं रहा था। तो मैं तो फिर पता है वो पता नहीं कुछ रैंडम ब्रीदिंग क्रिएट करने के लिए उधर जा रहा था, रैंडम पुशअप्स कर रहा था, कुछ रैंडम चीजें कर रहा था। इनफैक्ट एक शूट में तो मैंने आस्क्ड समवन टू, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा फिजिकली आल्सो डू समथिंग टू मी, मतलब बट सो हाँ, आई डोंट हैव अ फॉर्मूला यार, अगर वो किसी भी तरीके से वो चीज क्रिएट हो सकती है, आई एम कूल विद इट। आप कोई भी चीज, ओके, इंटरेस्टिंग, यू आर नॉट हार्मिंग योरसेल्फ। नमिता? Yeah, I also try and it's also music for me mostly. Nice. There are no other weird things that I can think of right now, but I also like if it's kind of a certain scene that day, I can listen to some intense music. Like I love listening to Interstellar soundtrack specifically on certain days. So yeah, मतलब कुछ ऐसा है, but मेरा भी ऐसा कुछ ऐसा not something eccentric. Okay, गुलशन? शुरुआत में मैं वैसे प्लेलिस्ट बनाता था, particularly scenes. शुरुआत में actually I used to make lots of notes on my script, and then धीरे I found it really laborious and it made me more rigid and not very relaxed. So then I just gave up. Then तो क्या होता था कि ये सीन में ये प्लेलिस्ट वगैरह वो सब मैं बनाता था and it helped me. मैं completely discount नहीं करूंगा कि उसका कोई मतलब it didn't help me or aid me or something like that. बहुत हुआ, लेकिन जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ने लगा, I also felt more confident and I was also, like I said, I'm obsessed with composure. If I'm composed, then I'm very confident that I'll be able to like get things right in the scene, listen to instructions, respond correctly, work with the co-actors, ये सब है. So काफी
उस चीजों पे ज्यादा मैं जोर देता हूँ. And I don't use, I mean, rarely if I feel like कि okay, maybe I should listen to something, I use, but I don't have any set patterns or anything like that anymore. I stopped it since like 4-5 years now. ओके रत्ना मैम, आई हैव अ क्वेश्चन कि तो फिर सीखने वाली चीज़ें कौन सी एज एन एक्टर? आपने जैसे एक्टिंग स्कूल पे एक लाइक आपने ये चीज़ बोली थी कि एक्टिंग स्कूल से मे बी यू आर नॉट द बिगेस्ट फैंस और फैन ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्टिंग स्कूल्स. सो इन इंडिया ओके ओके. सो ऐसी कौन सी चीज़, जैसे लाइक गुलशन ने बोला कंपोजर इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आपको आनी चाहिए. व्हाट आर दोज अदर थिंग्स कि यार एक्टर बनने हैं ना, आप ये चीज़ें सीख लो. फिल्म स्कूल, नो फिल्म स्कूल, दैट्स नॉट द पॉइंट. बट व्हाट आर दोज थिंग्स जो आपको लगता है एज एन एक्टर एक इंसान को आनी चाहिए when they are starting off? That's a very wide question. Okay. And one of the best definitions I've been given about acting is this: okay, acting is responding to imaginary stimuli. Right. Everything in your environment when you are acting is imaginary. You are playing an imaginary person, the person opposite you is imaginary character, the situation is an imaginary thing. So what is an actor's biggest tool? Her imagination. Her ability to think in many, many different ways. To imagine what it would feel like to be in a desert without water. I mean, you've been focusing on crying. But that's one of the least complicated things in acting. Right. There are many other things. Right. For example, as Gajraj was saying, keeping quiet in a scene which is highly emotionally loaded, where you don't have anything to say. Yeah. But you have to be present. Also, there are other things that are extraordinarily complex to achieve. Right. I mean, for example, I wonder how all these actors who act with computers do it. आजकल हर एक फिल्म में होता है ना, कंप्यूटर के सामने बैठ के और सारा एक्सप्रेशन आपको कंप्यूटर के सामने करना है. It's all green screen acting, no? Yeah. Most of it. कैसे करते होंगे यार? How are you talking to a hobbit? और कैसे समझाओगे आप एक ड्रैगन को? Acting करते, I mean, look at how much imagination you'd have to use. Absolutely. These are much more complex things than crying because my mummy is dead. Anyone can cry because mummy is dead. Yeah. Right? Yeah. So I'm saying that imagination is our biggest tool, probably the most important tool that we have to start with. And as actors who begin, we are so constrained by acting class from using our imagination. कोई एक्टिंग क्लास में आपको इमेजिनेशन का कोई जगह ही नहीं देंगे. आपको सीधा इम्प्रोवाइजेशन में डाल देंगे. आपको कहेंगे इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बर्निंग ब्रिज and you have to save a child at the other end. That would be your first day at acting school. Imagine karo, aap impro. I mean, what does this mean, for God's sake? You are then going to imagine in the most crude fashion possible. You're going to behave in the most crude fashion possible. You can get nothing out of that kind of an experience. But that's how most acting schools in our country that I have experience of go about it. So that's why my problem with acting schools. Imagination, the training of your imagination. That's what Gulshan says. He's really what he means when he's talking about, when he says he wants composure. Because he has to be in a state of being able to imagine everything that's coming at him. So imagination is the most important thing for me. Second is what are an actor's tools? My body and my voice. That's all I have. I can't write, right? I can make somebody else's words sound beautiful, but I can't write those beautiful words myself. So my voice and my body. So how do I make both these things most expressive? Not strong, not a six-pack body, not a muscular body, an expressive body. The way in which Gene Kelly's body can express. वो जब singing in the rain नाचता है, he makes each of us turn into a child. I'm playing in a puddle with him on the street when I see Gene Kelly dancing and singing in the rain. Or when I see Sid Charisse do that amazing number from American in Paris, the sexiest performance by a woman I've ever seen, really. And she's dancing. And it's
So what I'm trying to say is that your body and your voice, these are the only two things that you can train constantly and use in the most intelligent way possible and different way possible. You can change your appearance, which is now happening much more frequently. But I remember in the old days, to get an actor to change his appearance, I remember one very famous actor and one very famous film. Of course, I'm not going to name names. अरे तो क्या बाद में फायदा फोन करके बताऊंगी. But you know, there was this big discussion about how this person's going to grow a mustache for this role, and the actor kept saying, "Yes, I am. I will," and never did. So that was the problem in my time. Actors refused to change their appearance. Rekha as a village girl was the same as Rekha as a main sahib in a big house. Nobody changed. Everyone wanted to see the same glamorous creature. That's it. Today, thankfully, we are acting at a time when we are supposed to become different people and experiment with ourselves. You guys are so lucky, you just don't know it. But don't you think that the aesthetics have also changed? That Yes, is also part of everything has changed. Which is why you are being given we are all being given these opportunities. Yeah, मुझे नहीं लगा था कि साला 50 साल की उम्र के बाद मुझे इंटरेस्टिंग रोल्स मिलेंगे. I had given up. जो भी मुझे काम मिला है वो पिछले 5-10 साल में मिला है ना. I'm 64 today. 55 plus is when I started getting decent work in the movies. In television, I was luckier. But that's it. You know, suddenly people are required, and becoming people is very difficult. It's easier to copy somebody, no? So many people live their whole lives mimicking somebody else. Somebody mimics Dilip Kumar, then that person gets mimicked by somebody else, and so on and so forth. हम लोगों ने तो बहुत साल निकाले हैं ऐसे. So this is what I find most exciting about the work happening today. That finally we are trying to aim for truth in behavior. Nice. Finally. There is a comment by Nikhil ki why does Ratna ma'am not have a podcast? Because people are really liking listening to you, that you should have a podcast of your own. You need to be a podcast. If I talk too much, then they won't be able to put up with me. My family can't put up with me anymore. मैं बहुत बोलती हूँ. You have no idea what podcasters do these days. They talk for 3 hours non-stop. You are made for this. You are built for this. गुलशन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. टेनिस में होता है ना यार, कुछ लोगों का बैक एंड वीक होता है. प्लेयर्स को पता होता है यार मेरा बैक एंड वीक है. व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट यू एज एन एक्टर जो आपको पता है कि यार ये ना मैं अभी भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. इफ यू वांट टू शेयर इट, हो सकता है आप बोले कि नहीं यार मैं तो परफेक्ट हूँ. कोई ऐसी चीज आपने जो आइडेंटिफाई की हो, बाकी लोग भी सोच सकते हैं. ऐसे कुछ सोचना पड़ रहा है गुलशन को, देखो ऐसे कुछ निकल के नहीं आ. मैं एक जनरली क्या होता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं कम काम करूं. जब कम काम होता है तो बीच में आपको समय मिलता है, और जब समय मिलता है तो आपको सोचने का बड़ा. आई वेंट टू डिजाइन स्कूल, सो मुझे इमेजिनेशन यूज करना. मैं थिएटर स्कूल नहीं गया था, मैं डिजाइन स्कूल गया था. बेटर ट्रेनिंग. तो हाँ, they train you to use your imagination. That imagination is everything. And of course, but you can have the greatest skill, and if you have no imagination, it's of no use. So I think it was a blessing in disguise that I'm able to do that. जब समय मिलता है तो you have a lot of time to think about it, and then ऐसे नहीं कि कोशिश भी नहीं करना पड़ता है कि किसी चीज को बारीकी से सोचे, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. That particular project, that role. So धीरे you construct, or rather you start to understand, or things will start like through discussion with your co-actors or your directors, or just working by yourself, or reading a script or watching something else. I mean, it could be anything. So usually मैं जब set पे पहुंचता हूँ तो I'm very I'm very composed, because I know that I have put in the work. I know this character. I know how this person will behave. And even if you change the scenario, आप dialogue change कर देंगे या scene के blocking change कर देंगे, मुझे ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, because I know the person I am supposed to play and how that person will respond. Technical issues पे difficulties हो सकते हैं, but ऐसा I don't really, I mean, long story short. But like कोई और है जो कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज पे अभी काम कर रहे हैं यार आजकल में इस चीज के साथ, लाइक गजराज सर, इज देयर एनीथिंग जो आप पर्टिकुलरली अभी जिस चीज पे
एज एक्टिंग जिस पे आप काम कर रहे हो कि दिस इज वन थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दीज डेज? ऑनेस्टली मुझे लगता है मैं बहुत वर्सेटाइल एक्टर नहीं हूँ। ओके। शुरू से ही स्टेज से लेकर अब तक मैं बहुत मेहनती एक्टर हूँ और बहुत लकी एक्टर हूँ कि मुझे इंटरेस्टिंग रोल मिलते गए और मैं वर्सेटाइल डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिलता है। तो जहाँ पे जो मेरी जो कमियां हैं वो छुप जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं ऐसा श्योरिटी के साथ या गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि मैं सारे रोल और हर तरह का रोल कर पाता हूँ या किया है मैंने या करता रहूंगा। मैं डरता हूँ बहुत। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे और जब किन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, मणि सर, शेखर कपूर, अनुराग कश्यप, अमित शर्मा, हितेश केवलिया, आनंद तिवारी, मतलब जो उम्र के अलग अलग पड़ावों में जो मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, लेकिन अनूठे हैं, जिनके सामने मुझे सरेंडर करते हुए शर्म नहीं आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे डायरेक्टर के यूनिवर्स में जाएं जहां पर आपको सरेंडर करने में परेशानी ना हो। उसके बाद चीजें मेरे लिए तो काम करती हैं वो चीजें। सो नाइस। नमिता, अच्छा एक वीकनेस याद आया, मैं बोल दूं? हाँ याद आया मुझे, कितना सोचना पड़ा। मैं सोचना पड़ा। हालांकि मैं इस तरह की फिल्में करता नहीं हूँ। लाइक आई लव डांसिंग, लाइक किसी भी पार्टी में किसी माहौल में मैं बहुत खुल के नाचता हूँ, लेकिन मैं डांसर नहीं हूँ। जब मुझे करना पड़ता है कैमरा के सामने, मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ। I need lots of rehearsals, I need like many days of practice. ये चीजें, ये हुनर नहीं है मुझ में और I find it really difficult. तो वहां पे मैं ऐसा अपना कंपोजर खो देता हूँ। I find it difficult. जहां पर भी मुझे एक दो बार मुझे करना पड़ा है for music videos or some sequences, I've struggled the most when I have to do lip sync and dance. Okay, Namita? Yeah, I also feel that maybe I would have trouble with lip sync because I've never done any lip sync songs except in some bloody crowd scene where it doesn't matter. But to do something like a singer, if I had to play a singer where I would actually need to lip sync, I'm very worried about that. Yeah. And my biggest embarrassment, of course, is my inability with my body. I have very little athletic control over my body. I remember जब पहली बार मुझे गिरने का सीन करना पड़ा था, इधर उधर में पानी पड़ा हुआ है और मुझे आकर के मैं भागती हुई आती हूँ और मुझे फिसलना है। And oh God, I just couldn't get that right. I just didn't know how to fall. And I'm a theater actress. That's one of the first things you learn when you're acting, you know, how to fall. But I just could not get that right. और वो जो फाइनली जितना भी उन्होंने रिटेन कर पाए वो लोग, उसका बाद में हम लोगों ने मॉनिटर पे देखा तो पूरा यूनिट बैठ करके हंसा खूब मेरे आसपास, you know. उन्होंने this was their joke for the day कि जरा देखो रत्ना कैसे गिरती है kind of thing. So physically I'm not at all as proficient as I should be. Big problem for me. Okay, I also want Naveen's and Namita's opinion on this. Namita? I'm working on everything, yeah, and the same thing जो रत्ना मैम ने बोला बॉडी के बारे में, मुझे भी कभी कभी मुझे बॉडी इतनी कंस्ट्रिक्टिव लगने लग जाती है अचानक से. So even I try to do proper relaxation before. कभी कभी पॉसिबल होता है, टाइम मिलता है तो मतलब रिलैक्स करने की मैं कोशिश करती हूँ because it's a thing, because I find the body being the biggest sometimes the obstacle to a performance. And but I have been trying to like मैं agility पे अपने काफी सालों से काम कर रही हूँ, तो obviously that helps, but it also comes from the mind. So I don't know, sometimes it's a mix of that. Yeah. गजराज सर कुछ ऐड कर रहे थे. हाँ जी. ये बोल रहा था कि ये जो अभी कितने लोग हो गए हैं? अभी 450 people are watching us. 100 लोग और आए हैं, उनको बताओ ना कि डोनेशन कैसे करना है. मेरे को मौका नहीं मिल रहा. आई एम सो सॉरी. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये थोड़ी है 100 लोग आए, 100 लोग चले गए होंगे और 200 लोग आए होंगे ऐसे. हाँ, दही भल्ले की चाट के लिए थोड़ी ऑफर कर रहे हो कि खाएंगे भाई साहब दही भल्ले ठंडे हो रहे हैं. मैं कुछ नाम भी रीड आउट करता हूँ जिनके डोनेशन आए हैं. देयर इज राज नंदिनी शुक्ला, उन्होंने 2000 रुपीज का डोनेशन किया है. देर आर डोनेशंस बाय मुस्कान एंड देर इज अ डोनेशन बाय सुरेश एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर डोनेटिंग लाइक दिस. यूपीआई का हमने गाइज एक आईडी डाला है जिस पे आप डायरेक्टली डाल सकते हैं अपने डोनेशंस. ये अन्ना क्षेत्र फाउंडेशन है जिसको ये डोनेशंस जाएंगे. एंड प्लीज़ डोनेट. आप सुपर चैट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वी वुड सजेस्ट
आप यूपीआई के थ्रू करें, क्योंकि सुपर चैट के थ्रू करेंगे तो यूट्यूब 30% काट के like will give the donation. So yeah, so और इसमें कोई लिमिट नहीं है डोनेशन की प्राइस, Donation मतलब की- कितना भी पैसा दे सकते या हैं। या सो या डायरेक्टली आप यूपीआई पे कीजिए और फाउंडेशन के पास डायरेक्टली पहुंच रहे हैं वो पैसे। सो या नवीन भाई नवीन बताओ, नवीन weakness बताओ। नवीन हाँ नहीं, weakness। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि गुलशन ने अपना कोई भी फ्लॉ नहीं बताया, क्योंकि गुलशन मेरा फेवरेट एक्टर है और मैं बड़ा खुश हूँ कि ऐसा ही जैसा मैं समझता हूँ वैसा ही हुआ। मेरे लिए वही, मुझे ऐसा लगता है सबसे डिफिकल्ट लगता है वो कंपोजर अचीव करना, यू नो। मैं बहुत नर्वस होता हूँ और मेरा नर्वसनेस का रीजन ज्यादातर लाइंस होता है, यू नो। तो मैं अगर लाइंस में बहुत बार कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ, यू नो, तो फिर वो कंपोजर अचीव हो जाता है और फिर मुझे मजा आता है सीन्स में। मैं लिसनिंग मेरी बेटर हो जाती है, यू नो, आई एम प्रेजेंट इन द सीन। तो इफ आई एम एबल टू अचीव दैट कंपोजर ना, फिर मेरे सीन्स अच्छे जाते हैं। और अगर मैं वो चीज नहीं कर पाया हूँ, एकदम करेक्ट वर्ड बता दिया गुलशन ने, अभी और भी क्रैक करने में इजी होगा। तो हाँ वही, तो फिर मतलब if I crack that, if I have that on the set, then I enjoy the scene more and I perform also better. तो those are the things यार, I think वो मुझे, मेरे हिसाब से, मेरे लिए अभी तक तो वो लाइंस हैं। तभी ऐसा बहुत लोग कह भी रहे हैं कि जिनमें तुम्हारी लाइंस नहीं होती हैं उसमें तुम्हारी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। तो वो एक्चुअली है, क्योंकि उसमें मैं ज्यादा काम हूँ शायद, यू नो, आई एम एबल टू लिसन बेटर एंड माय बॉडी इज रिएक्टिंग इन अ मोर रियल वे, यू नो। तो हालांकि बहुत बेसिक सी बात है, बट नहीं, बहुत करेक्ट बात है। लाइन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप वहां पे कुछ और कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी किसी और को एक्टर पे निकालेंगे, कमी निकालेंगे, किसी असिस्टेंट पे चिल्लाएंगे, कुछ और कर। अरे यार चुप हो जाओ ना यार। ये हुआ है हमारे सेट पे। Clear my eyeline. मैं भी कह रहा हूँ, स्पेशली सर अगर टेक्स्ट बहुत अच्छा है तो मैं नहीं चाहता कि मैं इम्प्रोवाइज करूं, यू नो, क्योंकि एक तो आप टेक्स्ट फॉलो करते हो तो आप एक सच में वो कैरेक्टर बनते हो, वरना आप अपना ही वर्जन लाते रहते हो बार बार। तो इसलिए आई थिंक उस केस में ऐसा होता है। एक बात, बहुत अच्छी बात बोली नवीन। मेरे को एक चीज सबसे पूछनी है, वन वर्ड आंसर फ्रॉम एवरीवन। डू यू थिंक यू आर अ बेटर एक्टर विद लाइंस और डायलॉग्स और विदाउट लाइंस और डायलॉग्स? कि आप लाइंस के साथ बेटर एक्टिंग करते हैं या व्हेन यू आर जस्ट डूइंग इट विद योर आईज, लाइक कौन से वर्जन को आप अपना बेटर वर्जन जानते हैं? मैं अच्छी लाइंस के साथ अच्छी एक्टिंग करता हूँ। ओके, गुलशन? I enjoy both. I knew it. I enjoy it. Ratna, because it's yeah. I don't see the point of this division. Yeah, I mean, I can't understand it. How can you do one or the other better? No, but like I can't understand that. कुछ लोगों की एक होती है ना चीज कि दिस इज लाइक दैट टेनिस एनालॉजी दैट आई वुड लाइक टू गिव, कि कभी-कभी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी नहीं है एंड लाइक excuse me, no, use your own tennis analogy. Yeah. Can anyone who doesn't know how to hit the ball over the net play tennis? No. Forget about in a competition? No chance. So if you are in this business, then all this is a given here. Correct. You will be required to speak lines, and so far, unless you are acting in a play which is entire, or a film which is entirely movement oriented, right, you can't do without one or the other. Yeah. So it's a false division. और And I don't think you should make this kind of division. It gives the wrong idea to people. That acting is divided into little compartments. Got it. We are not divided. We are human beings. Yeah. We respond with everything. गजराज Don't से divide कुछ it into compartments. मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ रत्ना जी से, क्योंकि फाइनली जब डायलॉग आप बोल रहे हैं को एक्टर के साथ हैं, और जब को एक्टर की लाइन है तो आप उस समय उसको रिएक्ट कर रहे हैं बिना बोले, तो वो उसमें आप ऐसा नहीं हो सकती यार ये ना को एक्टर की लाइन पे ठीक से रिएक्ट नहीं करता, इसको चेंज कर दो इसके अंदर। राइट because like ma'am is saying, क्योंकि मेरे को बात समझ आई कि all of it is, it's a false division. It's a false division. It is, should not be made. Yeah, it is all connected. आप एक चीज नहीं इनमें से वो पिक कर सकते। There is a super chat of $50 with by Aditya Verma. Thank you so much Aditya. Like him, like you can also contribute. We have to wrap it up because हमारा next उसका stream का time चालू हो रहा है, but like जाने से पहले कोई एक एक्टर कोई दूसरे से कोई सवाल पूछना चाहेगा, लाइक आई विल जस्ट ओपन इट टू द हाउस। नवीन, यस। रत्ना मैम, हम फिल्मी चक्कर कहाँ देख सकते हैं? मैंने YouTube पे बहुत सर्च किया, सब कुछ अवेलेबल है, महाभारत से लेके देख बाय देख, लेकिन फिल्मी चक्कर कहीं अवेलेबल नहीं है। मैं भी देखती थी फिल्मी चक्कर। मुझे नहीं मालूम भाई, मैंने कोशिश भी नहीं की ढूंढने की, बट नाउ दैट यू आस्क्ड मी आई विल लुक फॉर इट। आई डोंट नो,
I really don't. Idhar Udhar is on IMDb YouTube fully. It's चक्कर streaming. का Idhar Udhar is. वो नहीं I've seen मिला है। Idhar Udhar. Yes, and it keeps coming on my suggestion list also, surprisingly. Yeah, but if Filmi Chakkar is not there, yes. And you know, Idhar Udhar was shot in 1984, and it had 2 women and 1 man living together in a flat, none Yes. of whom were related by marriage or sex or anything. And there was nobody created a problem. Nobody said, Yeah. "Hi, this is against Indian culture." Nobody. मतलब we were more modern in 84 than we are today. माशाल्लाह. गाली ज्यादा बक सकते हैं हम लोग आज के जमाने में. धड़ाधड़ टीवी पे इस पे उस पे आप गालियां बको खूब और मारामारी करो, लेकिन आप कोई पते की बात करो तो तकलीफ में पड़ने की डर है. So this is a really strange stage. But anyway, I'm sorry, I don't know how to find Filmi Chakkar. I don't found have it. any episodes. Where? What's that? That's Filmi Chakkar. ZTV का YouTube चैनल है, उसमें देखो। अरे उसमें वाह, है. Hey, नवीन का Thank you. Hey, I wow. shall look for दिस it. इज नाइस बिकॉज Nice. गुलशन के बारे में एक चीज है. गुलशन से मैं एक बार मिला था, उन्होंने कहा उन्होंने स्विमिंग यूट्यूब से सीखी है. द वे ही अंडरस्टैंड्स यूट्यूब एंड आई वाज स्विमिंग यूट्यूब से कैसे सीख सकते हैं. एंड गुलशन, And I'm not मुझे a भी YouTube सिखाओ. big- मुझे भी स्विमिंग सीखनी है. YouTube पे कैसे सीख सकती हूँ मुझे भी मैम, प्लीज आपका बताना. Sister. शायद स्विमिंग का सीन। Speedo.com Speedo का एक YouTube चैनल है, उसमें ट्यूटोरियल Speedo.com. Okay, I shall द check. रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन लिए बिना चलचित्र टॉक्स नहीं चलता है. सो दिस वाज अ रिकमेंडेशन. speedo.com. Speedo. Yeah. I need to learn I swimming. recommend YouTube. There's so many really valuable things that you can learn from. क्योंकि हाँ, और एक्टर्स को भी एज एक्टर्स आल्सो आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं दूसरी कला में भी कुछ रुचि दिखाऊं, जस्ट टू सी लाइक पेंटिंग्स और लिसन टू Yeah, म्यूजिक. और Lovely. थोड़ा कर लिया, गा लिया, ठीक है, बेसुरा गा लिया, ठीक है, बट आई थिंक दैट आल्सो एड्स अ लॉट ऑफ डिटेल इन योर वर्क एज यू कीप इंडल्जिंग. एब्सोल्युटली. एंड गुलशन से हमने डेट लॉक की हुई है. एक स्नीकर्स के ऊपर हम पॉडकास्ट करेंगे बिकॉज ही वांट्स टू टीच अस एवरीथिंग अबाउट स्नीकर्स. ही इज अ स्नीकर एंथुसियास्ट. हाउ मेनी पेयर ऑफ स्नीकर्स डू यू ओन? I've not counted, but yeah, maybe 300. Oh, what? 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 I mean, Harshvardhan Kapoor has 4,000. I was about to say that, but Please, So and I don't know how मेरे much. को 3 स्नीकर एंथुसियास्ट पता है. आप, हर्षवर्धन कपूर और अनुराग कश्यप. like My AK also has some 800 or something. 800 sneakers? हाँ, हो सकता है. उसके तो मतलब जूते डिजाइनर ना? लेवल जूते जूते ना? जूते हाँ, राइट. इमेल्डा नहीं, मार्कोस, मतलब आप लोग सब इमेल्डा मार्कोस के पीछे उसके नक्शे कदम पर चल रहे हो. मैं नहीं चल रहा. They are hype beasts. I'm a sneaker enthusiast. They are hype beasts. उनके सारे जूते रीसेल मार्केट में बहुत पैसे का मिलेंगे. मैं वो नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं खरीदता हूँ और मैं बेचता नहीं हूँ, मैं पहनता हूँ. 300 जूते रखने की जगह भी तो चाहिए होगी, तो नहीं है जगह. सेकंड बाथरूम में फुल ऑफ स्नीकर्स. बट या एनीवन और कोई, जैसे नवीन ने पूछा, किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? वी हैव टाइम फॉर वन मोर क्वेश्चन. अगर कोई किसी से कोई चीज पूछना चाहे. अरे यार 7-8 मिनट के साथ में. हाँ, वी हैव या नमिता आप मतलब बताओ अपने बारे में. कस्तूरिया, तुमने ये दाढ़ी अपने किसी रोल के लिए बढ़ाई है? नहीं but सर, better अच्छी लग रही है. मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा कोई रोल मिले जिसमें मैं गुरतेज सिंह या बलवंत सिंह का रोल करूँ, लेकिन ये तो सिर्फ लॉकडाउन है सर, कोई वजह नहीं है, मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं है, तो इसलिए बस बिल्डिंग मेरी शीट ये नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है. तुम्हारे पास बहुत मोटिवेशन होते हैं. नहीं सर, घर में बैठा हूँ मैं, मैंने शक्ल नहीं देखी किसी की, 40 दिन से अकेला इस घर में हूँ मैं. तो हम भी शक्ल जूम पे ही देख रहे हैं. एवरीवन शक्ल जूम पे ही देख रहे बोल रहे हो हैं. या क्या? अच्छा, मेरे पास एक सवाल है, सबके लिए है. आपकी कोई तमन्ना है कि आई नो सम ऑफ अस आर स्टिल गेटिंग स्टार्टेड, एंड गजराज जी एंड रत्ना जी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिटवीन देम, बट आपकी कोई तमन्ना है कि ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है, इस टाइप की फिल्म या इस टाइप का किरदार मैंने निभाया नहीं है? एक फैंटेसी होती है सबकी, सबका एक फैंटेसी होता है. एनीथिंग लाइक दैट? इंडियाना जोन्स टाइप का मुझे रोल करना. नाइस. I want to be able to drive a jeep over really tough terrain. I love that thought. I don't know why. करना है आपको. बाकी Nice. प्लीज दिस इज सच अ नाइस क्वेश्चन. हाँ, everybody is open to बाकी लोग everybody. बताएं.
ना हम लोग तो वैसे भी फैंटेसाइज नहीं मैं और वानी भी बता सकते हैं क्या? नहीं सॉरी। तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बताओ। सर गजराज सर। गजराज सर, नहीं, गजराज। पहले वैभव और वानी। नहीं सर, बहुत ज्यादा प्रेशर है, इतने इम्प्रॉम्प्टू लाइक अभी लाइक या प्लीज आप बताइए, लाइक आई विल कम बैक विद वन। या नवीन, नमिता, लाइक मेरे को जैसे मुझे करना है यार, मेरे को डॉन करने का बहुत मन है यार। डॉन आज कंपनी का मलिक, मेरे को कंपनी का मलिक भाई बनने का बहुत मन है कि यू नो गैंगस्टर। हाँ, मेरे को कोई सोचता नहीं है वैसा, लेकिन मुझे लगता है मुझे मजा। रामू सर की फिल्में बहुत देखते थे क्या पहले? जब सोचते थे कि एक्टर बनना है। इसकी फेवरेट फिल्म है रंगीला, पूरे टाइम उसके डायलॉग बोलते हैं अभी भी। तो हाँ, तो मुझे बहुत मन है यार वो करने का। एक लाइक आई ऑल्सो हैव एन आंसर। आई एम नॉट अ कैरेक्टर बेस्ड, मेरे को लैंडस्केप ड्रिवन पर्सन हूँ मैं, तो मेरे को ये नहीं पता मेरे को क्या करना है, बट मेरे को ये पता है कहाँ करना है। मेरे को मार्स के ऊपर एक्टिंग करनी है, लाइक आई वांट टू डू समथिंग ऑन मार्स बिकॉज मार्स के ऊपर एक्टिंग करनी है। सही वाली फैंटेसी है तुम्हारी तो, एक्चुअली करेक्ट फैंटेसी। या दैट इज माइंड लाइक ग्रीन स्क्रीन लगा देंगे मार्स का नहीं पीछे, नहीं तुम इंटरैक्टिंग करते जाओ, हम पीछे लगा देंगे। वी वांट जाके करनी है। एंड बाकी लोग लाइक प्लीज अपना सब बताइए, व्हिच इज दैट वन रोल जो करने का। मैम का आंसर बहुत ज्यादा सही है, लाइक वैसा कुछ बताइए गाइस। यार मुझे तो माइंड हंटर जैसे शो था ना, आई थिंक हम नवीन उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे, जो स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर होता है, दे आर क्रिमिनल्स एंड क्राइम एंड वो वाला जॉनर, वैसा कुछ करना है। सर उसमें वो बेस्ट इमेजिन करना, नो वी कैन इजीली फिट इनटू इट इफ समवन मेक्स दैट इन इंडिया। यस, बिकॉज़ वी लुक वेरी नॉर्मल एंड रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव people. And investigate करना है यार, that investigation thing is very alluring, मुझे बहुत मजा लगता मुझे, and I love Mindhunter, तो मेरा रेफरेंस सिर्फ वो है। Nice. तो या और गजराज आप बताओ। गजराज सर आपको ब्रेकिंग बैड करना चाहिए इंडिया में। अरे ओह वाओ, बहुत सही बोला है। मैं जैसी बनूंगा सर, जैसी मैं बनता हूं मोटिवेट बन जाऊं। अपने आप को तुम्हारी जगह कास्ट कर रहे हो नवीन। मुझे ये जैसे स्पर्श एक फिल्म थी नसीर भाई की, वो वैसा यूनिवर्स मुझे बहुत डराता है कि वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वैसा करने का मन करता है। पिंक पैंथर जैसा कुछ वैसा बहुत उसी लेवल पे उसी सिंसियरिटी के साथ अगर हम लोग कर पाए, बहुत सारी चीजें। मैं अपना बताऊं, I usually don't have these things, लेकिन मैं आजकल मतलब कुछ टाइम से मैं सोच रहा था अगर ये पॉसिबल होगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। I don't really care. I want to play a woman, not a transgender or a crossdresser or anything, like a woman convincingly. I think it's very difficult. Yes. So, wow. or a man, yes, that would be wonderful. Yeah, it will be very difficult. I have very, no very idea how anybody can pull it off. At least I don't know how I can pull it off. But अगर फैंटेसाइज करना है जैसे आप मार्स के ऊपर करना चाहते हो, काफी मुश्किल है। I think this would be like, मैं अगर कन्विंसिंगली मैं पुल ऑफ अगर कन्विंसिंगली पुल ऑफ मैं कर दूंगा, और ये मैं तय नहीं कर सकता, जो लोग देखेंगे वो तय करेंगे, then I'll probably retire because I don't think it's anything more difficult. I'm joking. Yeah, I think Vani, it's your chance now. Vani, what role do you want to play? I don't fantasize about roles because I'm not into acting and everything. But I like quite recently, like Gulshan also said, I have been like really thinking that of floor length windows and uske bilkul opposite, exactly like a bilkul white color ki library with books in it, like floor length. That's what I've been dreaming of or fantasizing about these days. So the landscapes, not the characters. Yeah, sort of landscapes. Wow. Yeah. So we are going to see that in your background someday, Avani. I hope so. Like I hope so. But 500 And people what did are watching Naveen us. want to do? Naveen, what did you want to do? I said Malik Gangster. Bhai. Don. And Don. Malik Bhai. Don you मैं Goodfellas का गैंगस्टर नहीं बोल रहा हूँ, मैं गॉडफादर नहीं बोल रहा हूँ, मैं मलिक भाई, हालांकि मलिक भाई इंस्पायर्ड ही है वहीं से। मैम कुछ ऐड कर रहे थे आप क्या? मैं कह रही थी be careful what you wish for because you may get it. I know. I am also dreading now. Okay.
On that note, okay, 500 people are watching us now, and on that note, we पैसा मांग जल्दी. All 500 should bear. Yeah, Actually, please. can we also? Yeah, ma'am. Of course we can. There is a link. You will send us some. Yeah, please, we will. So thank you so much, Ratna ma'am, Gajraj sir, Gulshan, Namita, Naveen. This was really, really amazing. Thank you so much for joining, guys.